Hello everyone and welcome to Sambhav Law. In today's session, we have All India rank 71 Sakshi with us, who has secured a very good rank inside the CLAT PG exam. And she is here to share her experience as to how she cleared the exam, what was her preparation strategy, what resources, what things did she use. And accordingly, Sakshi, I would like you to welcome you to the channel. And accordingly, please introduce yourself to the audience, please. Thank you so much, sir. Hello, everyone. Myself, Sakshi Vishwakarma. Uh, I graduated from Delhi Metropolitan Education, which is affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University. I completed my graduation in 2022, and in that year, I gave my first CLAT PG, where I secured 816 rank, and thereafter I have been preparing from judiciary examinations. So after that, in this year, this was my second attempt, and in this attempt, I secured All India rank 71. Yes, sir. And accordingly, Sakshi, if I come to my first question, basically, when you were preparing for the exam, what were the things that you basically did, and what was your daily schedule, basically, what you followed during through this exam, basically? So basically, मैंने what I did was कि मैंने monthly targets and weekly targets I used to note down in my diary. तो मेरे monthly and weekly targets होते थे, and then I used to divide my day into two slots, morning and evening slots. जिसमें I assured myself कि that I have to give 8 to 10 hours, minimum 8 hours for study daily. मुझे कोई इतना 8 hours तो देना ही देना है, which included कि one major laws I have to cover, then two minor subjects. So thereafter revision, and then preparing some case laws and little bit of previous year questions के analysis. तो मेरा डेली का यही रूटीन रहता था. एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू कि थोड़ा लीगल करंट अफेयर से अपडेट होने के लिए मैं वीकली एंड मंथली यूट्यूब के कुछ वीडियोस देख कर लेती थी, विच कवर्ड लाइक 1 month के recent case laws by Supreme Court, तो विच इज इजिली अवेलेबल ऑन यूट्यूब. तो यू कैन कवर दैट फ्रॉम एनी यूट्यूब चैनल. तो मेरा यही रहता था रूटीन. आई सी. और उसमें भी जैसे आपने साक्षी, जैसे जो तैयारी वगैरह आपने कब शुरू की थी, इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताएं. So of CLAT PG 2025, I started my preparation from September. अच्छा. Because there were 2 to 3 exams lined up, so मैं totally focused. I was not. I couldn't give it total 100% to my CLAT PG. So आई कैन अंडरस्टैंड. that's why. आई सी. अच्छा, Yes, इसमें sir. अगर फिर मैं अगली बार अगर मैं आपसे पूछता हूँ, तो जैसे मान लीजिए आप बात करते हो कि आपने जो क्लैट पीजी एग्जाम था, बेसिकली वो आपके देने का पर्पस क्या था, मतलब आपने जब मतलब सोचा देने का, तो आप बेसिकली क्यों देना चाहते थे? So मेरा रीजन यही था. द ओनली रीजन मैंने दिया बिकॉज आई वांटेड टू सीक अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब इन बीएसयूज. तो एक यही मेरा रीजन था. मेरे को आई डोंट वांट टू परस्यू एलएलएम एज फॉर नाउ, तो अभी तो नहीं करना है. सो पीएसयू में जॉब्स के लिए ही मैंने करा था. एंड 3 months बचे थे, तो जो लास्ट रिसोर्ट मेरा था कि आई हैव, क्योंकि मैंने 2022 में I subscribe to your that mock test series. तो मेरा ये था कि whenever I will give in future CLAT PG, तो I will definitely go for this course again. तो मेरा अगस्त में when I started, just 2 to 3 days before मैंने subscribe किया of that CLAT PG mock test series. तो this helped me a lot, क्योंकि 3 months के preparation में मेरा that is compilation case laws के case summaries के and my bare eggs. सो यही मेरे गो टू रहते थे कि मेरे को यही करना है. दैट्स इट, नथिंग एल्स. ऐसी. अच्छा, इसके अलावा मैं अगर बात करता हूँ तो आपको बेसिकली जैसे तैयारी आप जब कर रहे थे, तो आपने बेसिकली बताया कि आपने शेड्यूल फॉलो करा, एंड अकॉर्डिंगली उस शेड्यूल फॉलो करते हुए मतलब ऐसा टाइम्स आता होगा जहाँ पे आपको कोई सा ऐसा डिफिकल्टी फेस होता होगा कि हर बार आप 100% उस शेड्यूल से स्टिक नहीं कर पाते, तो उन चीजों को आपने कैसे ओवरकम करा? सर बीइंग एट होम एंड प्रिपरेशन, डूइंग प्रिपरेशन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू स्टिक टू योर डेली शेड्यूल्स. वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना थोड़ा उसको मेंटेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं. बट व्हाट आई यूज टू डू कि अगर मेरा टारगेट रहता था कि 8 hours मेरे को देने हैं एंड कुछ ऐसी चीजें हो जाती थी विच आई कैन नॉट अवॉइड, सो डेफिनेटली मेरा ये रहता था कि एटलीस्ट आई विल गिव 1 hour.
if not possible then half an hour मैं दूं, because I don't want to break that flow of the study, क्योंकि जहां पे एक बार वो ब्रेक होता है then it takes more effort to go on that track. तो ये था कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, तो मेरे को ये था कि आई डोंट वांट टू ब्रेक माय कंसिस्टेंसी, वेदर आई विल स्टडी थोड़ा सा कर लूं बट 5 मिनट के लिए बैठू, बट आई यूज टू सिट ऑन माई स्टडी डेस्क डेली। एंड कुछ ऐसे काम होते थे कि विच आई कैन पोस्टपोन टू, तो मेरा ये रहता कि ओके मंडे टू सैटरडे मैं बोल देती थी अपने फैमिली मेंबर्स को कि मुझे इन बीच में मत बोलो, क्योंकि ऐसा काम है जो मुझे ही करना है, जो कोई और नहीं कर सकता, देन आई विल डू इट ऑन संडे। तो मेरा संडे का भी रहता था, वो संडे को मैं रिविजन्स के लिए रखती थी एंड फॉर अदर वर्क शोज जो भी होते थे करके। अच्छा, इसमें भी जैसे ये होता है ना कभी कभी कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो अब आपने जैसे मान लो टाइम स्लॉट अपना कर लिया कि ये हो रहा है, उसमें भी हमें ये देखना पड़ जाता है कि अगर आपका मान लो कोई टाइम स्लॉट मिस हुआ या आपसे वो चीज़ नहीं कवर अप हो यस पाई, सर। तो उसके लिए भी अपने आप को अकाउंटेबल रखो कि भाई अगर नहीं हो पाया तो यस सर। जैसे मान लो छुट्टी पड़ी, मान लो दिवाली की अभी क्लैट पीजी के पहले, तो उसमें आपको ये है कि भाई उस दिन पर्टिकुलर जो छुट्टी है उसके पहले ही मैं भाई अपना जो भी काम वगैरह है अपना कर लूं और वो छुट्टी के टाइम पर मैं अपना छुट्टी एंजॉय करूं, और उसके बाद जो मेरा छुट्टी वाला वो टाइम है वो मैं पहले ही कवर अप कर लिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज का मतलब मुझे लगता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कि ध्यान रखना चाहिए यस सबको सर। मेरे हिसाब से। अच्छा, इसके आई बाद अपन यूज मान टू लो, डू दैट ऑल्सो। जी जी जी, एंड यस उसमें सर। जैसे सेक्शन होता है कि हम लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग कौन से आपने बेसिकली रिसोर्सेज यूज करे, कहाँ से आपने पढ़ाई करी, बेसिकली आपका क्या फंडा रहता सो मेरे बहुत मिनिमल रिसोर्सेज रखे थे, ओनली बेयर एक्ट्स ऑफ द लॉज, जो भी मुझे को जो भी सब्जेक्ट्स थे उसके बेयर एक्ट्स। एंड द सेकेंड थिंग वाज संभव लॉ की कंपाइलेशंस ऑफ द केस लॉज एंड केस समरीज, एंड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना एंड द एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। है ऐसे? अच्छा, इसके अलावा यस जैसे सर। मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि जैसे मॉक टेस्ट वगैरह के थ्रू भी आपको मतलब ऐसा होता था कि जो आपके केस लॉज वगैरह आप पढ़ रहे हैं वो है तो उसको आपका एक अपडेट होती है या फिर एक याद करने की जो चीज होती है उस पर आपको कितना बेसिकली बेनिफिट रहता था उस चीज से? Actually, mock test से the reason why again choose this संभव लो was that कि 2022 में जब मैंने 10 to 15 डेज का ही था, जून में हुआ था 2022 का मॉक, वो क्लैट पीजी। तो मैंने जब मॉक लिया था तो आई कुड ओनली अटेम्प्ट लाइक 5 to 6 प्रैक्टिस मॉक ऑफ संभव लॉ। जब मैंने एग्जाम्स दिया तो आई रियलाइज कि देयर वर लिटरली 5 to 6, मतलब उससे ही ज्यादा होंगे, बट जो पैराग्राफ्स तक आई कुड मैच की ओके यार ये केसेस तो मैंने पढ़े हैं, तो इतनी सिमिलैरिटी थी कि मेरे को, मैंने सेकेंड टाइम चूज किया तो फिर जो भी क्वेश्चन थे अभी मैंने मॉक टेस्ट मैंने 15 to 16 मार्क्स दिए थे इस बारी। तो जब मॉक टेस्ट दिए थे एंड जब क्लैट पीजी का पेपर देखा तो इस बार थोड़ा पैटर्न थोड़ा चेंज था, बिकॉज अर्लियर मैंने तो ये दिया है 2022 के बाद ये वाला मैंने दिया। तो what I felt from 2022 to this was कि पहले they used to ask the recent case laws की name, कि चलो नेम है, या बेंच पूछ देते थे किसी के डिसेंडिंग ओपिनियन किस जज ने दिया, they used to ask this, but in this में ये क्या हुआ, तो पैराग्राफ they gave the paragraph and in that self only they gave the name of the case also। तो वो हो गया, बट ये था कि सारे मॉक्स अगर आप दे दो, सिर्फ मॉक्स ही दे रहे हो आप, and you are just analyzing and retaining those mocks के provisions and the case laws, so I am sure कि you could get like 80 above in CLAT PG if you are going through the each and every paragraphs of the box। तो I think pattern जो संभव लॉ का CLAT PG का, it helped me a lot, क्योंकि वो हर एक पैटर्न पे था, 10 क्वेश्चंस बेसिस था, 5 to 6 वाला भी क्वेश्चंस का बेसिस था, तो इट यूज टू प्रिपेयर मी फॉर एनी अनसर्टेन पैटर्न। तो आई थैंक सी। यू सो मच सर। अरे डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड उसके अलावा जैसे मान लीजिए ये भी रहता है कि अब आप मॉक्स वगैरह देते थे तो मान लो कभी ऐसा हुआ कि किसी मॉक में अच्छा नंबर आया, किसी में उतना अच्छा नंबर नहीं आया, तो उसके लिए बेसिकली आप कैसे, एक होता है ना मोटिवेटेड अपने आप वो कैसे रखते थे, क्या दिमाग में आपके चल रहा था उस टाइम पे? सर कभी मॉक्स में अगर अच्छे स्कोर्स नहीं आते थे तो थोड़ा डीमोटिवेशन होता है कि यार आई एम लाइक वर्किंग हार्ड एंड आई एम नॉट गेटिंग द एक्सपेक्टेड स्कोर्स। तो बट ये होता था कि यार चलो दिस इज द ट्रायल फेज, ओके, आप ट्रायल एंड एरर करके जितना कर सकते हो मिस्टेक यू कैन डू, बट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक्स, ताकि आप ये मिस्टेक्स इंपॉर्टेंट एग्जाम के डे पे ना करो। तो मैं कोई भी मॉक्स जिसमें मेरे स्कोर्स कम आते थे, एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम आ जाते थे, तो व्हाट आई यूज टू डू
उसी टाइम आफ्टर गिविंग मॉक्स, स्कोर्स तो आपको देन एंड देयर पता चल जाते हैं, तो आई यूज टू डू कि मैंने कौन से अनअटेम्प्ट जो स्किप किए हैं वो पार्ट को मैं तुरंत ही प्रिपेयर कर लेती थी। कोई भी पैराग्राफ, तो ऑब्वियसली इट इन्वॉल्व सर्टेन लीगल प्रोविजंस। देन जो मैंने गलतियां करी हैं, तो आई एम डूइंग दीज मिस्टेक, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस दोबारा में पढ़ती थी जो मेरे नेगेटिव्स होते थे, आई मीन दोबारा यूज टू रीड दिस कि मेरे यार हाउ कुड आई पुट, हाउ आई हैव ऑप्टेड दिस आंसर, दिस इज नॉट द आंसर। तो मेरे को लगता था कि आई हैव टू रीड द क्वेश्चंस लाइक थॉरली एंड थोड़ा कामली। आप पैनिक हो जाते हो कि आप वो क्वेश्चंस पेपर देख के, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो कि दिस दे आर सो मेनी पैराग्राफ्स, बट ये होता था कि थोड़ा काम माइंड से you have to focus on the questions and the options, you have to read all the 4 options। या आप ये देखो कि सेकंड ऑप्शन से थोड़ा ये सही लग रहा है, ये हो गया, बट देयर आर कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें द अदर ऑप्शंस आर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो ये होता था कि मेरे को रीडिंग और अपने रीडिंग स्पीड एंड कैसे कॉम्प्रिहेंड कर रही हूँ क्या पैराग्राफ्स को, इवन क्वेश्चंस को, तो उसमें मैंने तब ज्यादा ध्यान दिया कि इट्स गुड कि आप स्कोर का थोड़ा कम करते हो, तो थोड़ा आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा कम करता है, ताकि यू कैन पुश मोर एंड यू आप ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाओ। जी, बात बिल्कुल आपने सही कही है। एंड अकॉर्डिंगली इसमें मैं अगला पॉइंट अगर आपसे पूछूं, तो जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे यस तैयारी कर रहा है, और उसकी बात क्या आती है ना कि जैसे कंसिस्टेंट आपको रहना है, और क्लैट पीजी का एग्जाम आप देख रहे हो यस कितना सर, ज्यादा कठिन है, केस लॉज इतने आते हैं, तो यस कभी सर। कभी होता है कि डिमोटिवेशन वाला फेज भी आ जाता है कि यार तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन कब वो मॉक्स में अच्छे नहीं आ रहे हैं, या भी लगता है यार कि कैसे इतना तैयारी मैं दिमाग में रिटेन कर पाऊंगा। तो उस टाइप के जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको बेसिकली आप किस तरीके से कहोगे कि आप एक तरीके से वो कर सकते हो, कम कर सकते हो? यू नो, किसी भी एग्जाम्स की अगर करे तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आई हैव, और मैंने भी कई सारे इंटरव्यूज देखे, तो मुझे को 3 थिंग्स दैट आई हैव एनालाइज्ड कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, दैट यूर प्रैक्टिस मॉक एंड रिविजन, ये 3 मंत्रा जो होते हैं आपको यू हैव टू पुट, कि आपको रिटेन कैसे होगा, क्योंकि प्रिपरेशन के साथ आप थोड़ी एज भी बढ़ती है, तो रिटेनिंग पावर हमारी थोड़ी कम होती जाती है। तो जहां पे आप पहले स्कूल टाइम में आप मंथली में रिवीजन करते थे, यू कुड रिटेन ऑल दोज थिंग्स, बट अभी होता है कि यू हैव टू डेली रिवाइज, और मेरी ये थोड़ा लैकिंग था कि मैं डेली नहीं कर पाती थी। देन आई यूज टू डू इट ऑन संडे, कि वीकली रिविजन्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप किसी भी कंपटीशन की कहते हैं ना, सिलेबस कभी किसी का पूरा नहीं होता है। इट्स द फैक्ट कि कुछ ना कुछ विल बी लेफ्ट। तो आपको लगता है कि आप पढ़ते जा रहे हो, मेरा पहले ही होता था कि आई यूज टू रीड एंड रीड, मैं प्रैक्टिस मॉक्स ज्यादा नहीं देती थी, चलो चलो ठीक है मुझे याद हो रहा है। जब आप प्रैक्टिस करते हो मॉक्स को, देन यू रियलाइज हो कि मैं कितना रिटेन कर पा रही हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी तैयारी को टेस्ट करना, वेयर यू स्टैंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो को मॉक टेस्ट आपको ये दिखाता है, इट शोज अ मिरर कि यार सी योर प्रिपरेशन स्टैंड्स हियर, आप इतनी प्रिपरेशन कर रहे हो, कितना रिटेन कर पा रहे हो। अगर मैं 100 केस लॉस एक दिन में रिवाइज कर रही हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं नेक्स्ट डे 100 केस लॉस के ऐसे ही माइंड में बोलते जाऊं। तो यू फॉर रिटेनिंग दोज 100 केस लॉस आई हैव टू रीड इट लाइक 100 टाइम्स। तो रिविजन इज द की। अगर आपको लगता है कि डिमोटिवेट हो रहे हो या कुछ भी है, जस्ट रिवाइज इट एंड गिव मॉक्स। रिविजन एंड मॉक्स, ये 2 चीजें कर लो, देन इट विल बी इजी। वो कंसिस्टेंसी भी मेंटेन हो जाती है। ये बात आपने वो बिल्कुल। ब्रेक होती है कंसिस्टेंसी, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट में अच्छा नहीं स्कोर करते हो तो यार क्या, व्हाट इज द यूज, आई एम स्टडिंग दिस एंड गेटिंग लो स्कोर, क्या ही फायदा है। तो वो जब आप रिविजन करोगे तभी स्कोर्स अच्छे आएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। एंड इसमें भी साक्षी एक जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए केस लॉज सब लोग ऐसा पढ़ते हैं, तो इतने सारे केस लॉज होते हैं, कम से कम 200-300 लोग मतलब केस लॉज पढ़ते हैं, सब कुछ होता है, तो बेसिकली उस चीज को रिटेन करने के लिए क्या आपने बेसिकली कुछ स्पेसिफिक नोट्स अपने बनाए थे, या आपने कैसे मतलब उस चीज को याद करने के लिए व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, आपने कैसे उस चीज को मैनेज किया बेसिकली? मेरा जो स्ट्रैटेजी था, व्हाट आई यूज टू डू, कि जो भी मैं लीगल टॉपिक्स कवर कर रही हूँ किसी भी सब्जेक्ट्स का, तो उस टॉपिक को खत्म करके देन आई यूज टू रीड इट्स लैंडमार्क जजमेंट्स। लैंडमार्क जजमेंट्स मीन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप रिटेन कर लेते हो। देन आई यूज टू कम ऑन द रीसेंट केसेस। अब रीसेंट केसेस को रिटेन करने का द बेस्ट बेस्ट थिंग इज रीडिंग द केस लॉ समरीज, क्योंकि अब 3 मंथ्स मेरे पास बचे थे, तो आई कुड नॉट अफोर्ड की गो टू रीड इन द होल द ओरिजिनल जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो मैं संभव लॉ के केस लॉ समरीज पढ़ती थी,
जब आपको फैक्ट्स याद होते हैं ना एंड इश्यूज याद होते हैं, तो केस लॉज के नेम भी रिटेन हो जाते हैं, उसके क्या प्रोविजंस थे, उसके क्या इंटरप्रिटेशन थे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी की भी जजमेंट्स की जो रूलिंग्स आती है उसकी क्या रीजनिंग है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, उसको कॉम्प्रीहेंड करना बहुत जरूरी होता है। देन ऑल्सो क्योंकि आप कोई भी केस लॉज कर रहे हो, सिर्फ आप केस लॉज नहीं कवर कर रहे हो, यू आर कवरिंग लाइक 2 to 3 सब्जेक्ट्स। आप कॉन्स्टी के कोई केस कर रहे हो तो वो कॉन्स्टी भी कवर करेगा, इट विल कवर एडीआर ऑल्सो, देन इन्वायरमेंट लॉ ऑल्सो, क्योंकि कॉन्स्टी इतना वास्ट है, एंड केस लॉज कहीं ना कहीं क्रिमिनल के भी कुछ आ जाते हैं, रेमिशन की एप्लीकेशन हो गई, स्पीडी ट्रायल हो गया, तो ये सारी चीजें आ ही जाती हैं। तो आप केस लॉज पढ़ रहे हो तो डोंट थिंक कि केस लॉज ही है यार, लीव इट, इसको छोड़ देते हैं, एक दो कर लेंगे, नहीं, आप केस लॉज पढ़ो तो इस मोटिव से पढ़ो कि यार मैं केस लॉज पढ़ रही हूँ तो इट विल कवर माई 2 to 3 टॉपिक्स ऑफ अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो मेरा यही स्ट्रैटेजी रहता था। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, उनके साथ बेसिकली स्ट्रक्चर्ड तरीके से लैंडमार्क को ज़्यादा आपने इंपॉर्टेंस दिया, रिसेंटली आपने ऐसे किया, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इस एग्जाम की तैयारी करते हुए। अब इसमें भी जैसे साक्षी एक बात यहाँ पे ये आई कि जो पैटर्न था इस साल, तो उसमें वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं उनको ज़्यादा फोकस रहता था। इस बार इन्वायरमेंट और आप कह सकते हो टॉर्ट्स हो गया, टीपी हो गया, इनके ज़्यादा क्वेश्चन आए, तो उस यस, चीज़ को बेसिकली कैसे आपने वहाँ यस। पे रेक्टिफाई कैसे करा, प्रिपरेशन मतलब एक होता है लाकुना है, तो कैसे उस चीज़ को आपने वो किया? सो मॉक टेस्ट ने बहुत हेल्प करा, सीरियसली मॉक टेस्ट ने इट रियली हेल्प्ड अ लॉट, क्योंकि अभी मॉक टेस्ट में भी आप, मैंने 16 मॉक्स दिए थे, तो 16 मॉक्स भी ऐसे नहीं होते ने, दे आर सिमिलर, बहुत ही कम रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही कम रिपीटेड पैराग्राफ्स होंगे, एंड 16 मॉक टेस्ट में 20 to 25 सब्जेक्ट्स कवर हो ही जाते हैं। इन्वायरमेंट के अगर कोई केस लॉज इंपॉर्टेंट है, उतने नहीं होते हैं रिसेंट केसेस, बट जो है इंपॉर्टेंट है उसके प्रोविजंस आप पढ़ लेते हो तो वो कवर हो जाता है। मॉक टेस्ट के आप एनालाइज कर रहे हो तो चलो ठीक है, मेजर लॉ सबके कवर हो जाते हैं, वो आप जुडिशरी का कोई भी तैयारी कर रहा है तो उसके बेस और थ्योरीज बहुत स्ट्रांग है। माइनर लॉज किसी किसी जुडिशरी एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, चाहे आर्बिट्रेशन हो, मैं यूपी की कर रही हूँ आर्बिट्रेशन, इट डजंट आस्क अबाउट आर्बिट्रेशन, और इवन लिमिटेशन, तो ये सारी चीजें मुझे मॉक टेस्ट से ही सीखने को भी नहीं है। तो एक होता है ना अनसर्टेनिटी के लिए भी मुझे प्रिपेयर संभव लॉ के क्लैट पीजी के मॉक टेस्ट नहीं किया है, कि आई वाज नॉट सरप्राइज्ड। हाँ, मैं सरप्राइज, मेरा फैक्टर यही था कि ओके, व्हेन आई रेड माय फर्स्ट क्वेश्चन, तो इट वाज ऑफ बिल्किस बानो का केस है, रेमिशन का एप्लीकेशन, तो आई वाज रीडिंग द पैराग्राफ, 2 to 3 लाइन्स मैंने पढ़ा, लाइक आई हैव रेड दिस पैराग्राफ, या तो समरी में मैंने पढ़ा हुआ है, ताले को चलो एक क्वेश्चन तो मेरा बन गया कि इसका केस नेम याद है, एंड द डाउन ऑल इट वाज रिटन द केस नेम, बट मेरा उसका जो पास 5 क्वेश्चंस थे सभी सही थे, उसके तो सही थे, क्योंकि वो रेमिशन, वो बिल्किस बानो का केस इतना लैंडमार्क था कि हर एवरी थर्ड मॉक्स में तो वो आ जाते थे, उसके सारे प्रोविजंस आ जाते थे कि उसके कॉन्स्टी के कहाँ कहाँ, उसके हाउ इट इज इंटरप्रिटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, देन क्रिमिनल लॉ। तो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो वो आपको हर एक अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर कर देगा। जी, मैं समझ सकता हूँ। एंड कहीं ना कहीं देखिए बात ये भी होती है उसके बाद पे, जैसे साक्षी की मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसी भी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि मॉक टेस्ट देते देते भी और एग्जाम की तैयारी करते करते भी देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे आपको सच में लगता है कि हाँ अब ठीक है, यहाँ पे इनफ हो गया है, और अब इसके आगे मतलब और तैयारी, अब मुझे लगता है वो एक मतलब पॉइंट आता है जहाँ पे कहते हैं बस अब एक लाइक इनफ है, तो वो वाला इनफ पॉइंट आपके लिए कब आया था? क्लैट पीजी के लिए जी, थोड़ा हद तक मतलब ये होता है कि आप सोचते हो कि हाँ ठीक है तैयारी कर ली है, अभी लाइक लास्ट डे है, तो लास्ट डे के इससे हिसाब से ज्यादा, हाँ। हाँ। सो मैंने 1 वीक बिफोर आई स्टॉप रीडिंग न्यू थिंग्स, मैंने क्लैट मॉक्स भी देने बंद कर दिए थे। मेरा लास्ट ये था कि लास्ट वीक में आई हैव टू जस्ट गो थ्रू द रिविजन, रिविजन, रिविजन एंड ओनली रिविजन, एंड जो मैंने मॉक टेस्ट जो दिए हुए थे, जो मैंने अटेम्प्ट किए थे, उसकी एनालिसिस जब भी मैं करती थी तो व्हाट मेरा ये था, मेरे एक मॉक टेस्ट के एनालिसिस के आई मेड अ नोट्स ऑफ दैट। तो मेरे जो गलतियां मैंने करी थी, एक क्वेश्चंस में आपके एक पैराग्राफ है, उसमें आपके ट्रस्ट में 20 क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं, 20 क्वेश्चंस, व्हेन आई एम सेइंग 20 पॉइंट्स आपके तैयार हो जाते हैं, उसमें आपके लैंडमार्क केसेस भी तैयार हो जाएंगे, उसमें रिसेंट केस लॉज भी तैयार हो जाएंगे, कोई भी अगर पैराग्राफ है, क्योंकि आप उसके 10 क्वेश्चंस देख रहे हो, उसके 4 ऑप्शंस देख रहे हो, तो ऑप्शंस भी देखोगे, ओके चूंकि हाँ, आप कोई केस लॉज देख रहे हो तो देन यू विल ऑब्वियसली क्यूरोसिटी भी आप देखोगे, क्योंकि ये केस लॉज किससे रिलेटेड है,
तो मेरा एक नोटबुक रहता था जिसमें मैंने 15 मॉक दिए हैं, जिसमें से मैंने 10 मॉक्स के अपने उसके कंसाइज नोट्स बनाए थे, जो मैंने गलतियां करी थी और जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। तो दैट हेल्प मी अ लॉट इन माय रिवीजन, क्योंकि जब लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए आप बेयर एक्ट्स के मैं इंडेक्स देखती थी, ओनली इंडेक्स, और मेरे इंडेक्स के प्रोविजंस जो टाइटल होते हैं, जो सेक्शंस के टाइटल होते हैं, उसके कोई कीवर्ड्स अगर उस प्रोविजंस के इंपॉर्टेंट होते तो मैंने उसमें लिख लिया रहता था, तो मेरा बेयर एक्ट्स के इंडेक्स पेज से मेरा वो रिवाइज हो जाता था मुश्किल से 15 to 20 मिनट्स में। एक बेयर एक्ट मेजर लॉ के खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए कंसाइज नोट्स एंड क्रिस्पी नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द एंड मोमेंट रिवीजन। दैट इज वेरी ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। एंड इसमें भी जैसे अब मान लीजिए साक्षी, मैं बात करता हूँ थोड़ा सा इस बारे में भी कि जैसे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस एग्जाम को दिया और एग्जाम के बाद वो अब सक्सीड नहीं कर पाए, नहीं इतनी अच्छी रैंक आई, तो उनके लिए बेसिकली आपके पास क्या मैसेज होगा? और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे आपने जब तैयारी करी तो उसमें क्या कोई ऐसी चीज है जो कि आपको लगा कि हाँ अगर मैं नेक्स्ट टाइम तैयारी करूंगी तो शायद मैं ये बेटर कर सकती थी? तो जो एक है कि द फर्स्ट थिंग कि रिवीजन मुझे जितना करना चाहिए था उतना मैंने नहीं किया, तो ऑब्वियसली आई विल डू मोर रिविजन्स। सेकेंड थिंग इज कि थोड़ा और अवेयर होना ऑफ रीसेंट केस लॉस, ताकि अगर आप व्हेन आई विल हैव इनफ टाइम तो डू रीड जजमेंट्स। तो जो 3 थिंग्स जो इंपॉर्टेंट है वही है, प्रैक्टिस मॉक्स पर प्रैक्टिस करो, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज, डू एनालिसिस ऑफ दोज क्वेश्चंस पेपर, एंड देन स्टार्ट रीडिंग। आप रीड एनीथिंग, मतलब रीडिंग करो, क्योंकि व्हेन यू रीड ना तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होती है। यू नीड टू एनालाइज द जजमेंट्स, जो भी पैराग्राफ्स होते हैं। तो फर्स्ट अगर टाइम नहीं है देन गो थ्रू द समरीज, बट यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देन रीड द एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स, तो यू शुड रीड। आप एक जजमेंट्स पढ़ो, यू विल फील द चेंज कि आपके कितने कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और वो रिटेन कर रहता है। व्हेन यू रीड व्हेन यू गिव टाइम टू समथिंग लाइक 1 to 2 hours, तो वो रिटेन रहता है। एंड यस, मैं अगर दोबारा दूंगी तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा ज्यादा मॉक लगाऊंगी एंड रिविजन। जी। यस, ओनली दीज 2 थिंग्स। दीज टू थिंग्स। एंड ऐसे बेसिकली सोर्सेज को कम रखो। हाँ। एंड बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहोगे जिनका कि बेसिकली इस बार एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया और थोड़ा सा एक होता है कि डिमोटिवेट होता है बेसिकली स्टूडेंट? मैं ये बोलूंगी, डोंट लूज होप। नेक्स्ट, अभी अगर आपको नेक्स्ट टाइम देना है देन यू हैव अ ईयर, तो 1 साल क्लैट पीजी के लिए इज मोर देन एनफ। एंड अगर आपको सच एक गाइडेंस चाहिए देन डू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट यू लाइक, बट मॉक टेस्ट के लिए तो यू शुड ज्वाइन। मॉक टेस्ट आप दो, पहले यू हैव टू मेक योर बेस स्ट्रांग। थ्योरी अगर स्ट्रांग रहेगी, उसके कंसेप्ट आपको क्लियर रहेंगे, देन यू हैव टू, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि क्लैट पीजी पहले मेरे को भी लगता था कि इट्स ऑल अबाउट जस्ट लर्निंग एंड क्रेमिंग द रीसेंट केस लॉस, बट इट्स नॉट दैट। कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको केस लॉ के नाम नहीं याद है इट्स ओके, लीगल प्रोविजंस क्लियर होने चाहिए, उसके रीजनिंग क्लियर होने चाहिए, यू विल डू वेल इन एग्जाम। तो होप नहीं लूज करना है। एंड बाकी फोकस ऑन रिविजन एंड फोकस बेयर एक्ट्स की रीडिंग पे। गो थ्रू द ईच प्रोविजंस ऑफ द बेयर एक्ट्स थॉरली। बेयर एक्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से ही बनते हैं। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। दैट इज बहुत ही मतलब एक वैलिड पॉइंट आपने कहा है कि बेसिक्स तो आपको वहीं से बनेगा, बैराक के अलावा कोई उससे हो नहीं सकता है। और दूसरी बात ये है कि होप नहीं आप लूज कर सकते। आप बिना होप के अगर आप ये सोच लोगे कि मैं ये एग्जाम दे रहा हूँ नहीं अच्छा गया, तो आपको सीवीटी का है ऑप्शन, आईएलआई है, आईआईटी खड़गपुर है, वरना आप नेक्स्ट ईयर जाइए दोबारा ट्राई करिए। अगर ऐसा। आप मान लीजिए लास्ट ईयर में है तो लास्ट ईयर में होने का मतलब ये नहीं कि तुरंत आपको एलएलएम कर ही लेना है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, कोई रैट यस। रेस यहाँ पे नहीं है। अगर कई लोग होते हैं रैट रेस में रहते हैं कि भाई तुरंत एलएम कर लेना है, खत्म करना है, दैट इज नॉट आई थिंक। मतलब एक आप होता है ना कि एक काउंटडाउन टाइमर अपने उस पर लगा लेते हो कि मेरे को तुरंत मतलब एक के बाद एक बस मेरे को चीजें अकम्प्लिश करती चली जानी ताकि टाइम से ही मेरा पूरा का पूरा चीजें खत्म हो जाए। वो चीज कहीं ना कहीं नहीं, आपका माइंडसेट होना चाहिए। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मैं जो करूँ, जैसे भी करूँ, अच्छा करूँ। जैसे अगर अच्छे एनएलयू से मैंने अगर अपना अपना एलएलएम करा, तो उसके बाद ऐसा। आपको ही पता है कि मान लो जुडिशरी में मेरा उतना अच्छा मान लो चीज नहीं गई, तो आप टीचिंग में जाओगे या कॉर्पोरेट लॉ में जाओगे, रिसर्च में जाओगे, कहीं भी जाओगे, वो नेम टैग
आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना है। तो इसीलिए गिव अप आप नहीं कर सकते हो कि यार अब मेरा क्लैट पीजी में एक बार अच्छा नहीं गया, या मतलब मेरे को अच्छे कॉलेज से नहीं भी कर पा रहा, प्राइवेट से कर लूंगा। इतनी आसानी से गिव अप मत करिए। और अगर मान लो कि प्रायोरिटीज, जैसे साक्षी आपके केस में जुडिशरी की तैयारी है या सब कुछ है, तो आपके यस केस सर। में चीजें एकदम थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, बिकॉज वहां पे आपको फिर ये भी देखना है कि मेरी तैयारी में फिर लैग ना आए। तो आप उसको फिर एक ऐसी जगह से अपने, यस जैसे सर। आरएमएल, अगर ऑप्शन है तो आप जैसे हम्म। आरएमएल चले जाइए या सीएनएलयू चले जाइए, वहां पे आपको एक अच्छी बेस मिलती है जुडिशरी की तैयारी करने की, बिकॉज वहां पे जो सीनियर्स होते हैं वो खुद भी वो आपको गाइड करेंगे, आपको एक पूरा इकोसिस्टम मिलेगा जो तैयारी में ही आपको हेल्प कर रहा है। तो आपको उस तरीके से देखना चीजें, बट आप हार नहीं मान सकते, दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर यहाँ पे। तो बेसिकली साक्षी, थैंक यू वेरी मच, आपने हम लोग को इतना टाइम दिया, और यहाँ पे जो जो पॉइंट्स आपने थैंक यू आपने सो बताए मच हैं, सर। हाँ मुझे लगता है काफी स्टूडेंट को हेल्प करेगा। एंड आई विश कि फ्यूचर में भी मतलब कभी अगर आपके और अच्छी रैंक कभी आए या फिर आपका वो हो, तो डेफिनेटली आई होप कि आप बहुत बढ़िया करो फ्यूचर में, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, and thank you for being such a good mentor. You are best, sir. You थैंक यू। you really helped your student a lot. Thank you so much, sir.